हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत जो है हम इतिहास करेंगे। ये इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, जो कि आज हमारा चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन या राइटिंग्स एंड सिटी लाइफ। बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें मेसोपोटामिया के विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू। और ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हो, चाहे नेक्स्ट के बच्चे हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हो। इवन कि जो कंपटीशन तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन आपको पता है, क्वेश्चन करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। According to the chapter here, writings and still life, the next question is most important here. What is causing the decline of Mesopotamia? You know that why the decline of the Mesopotamia here? This is the most important question. Here, the three factor is here, a decline of the Mesopotamia. The first of all here, Hammurabi as a death was followed by the mass revolt. There is a Hammurabi as a death was followed by the mass revolt, and Hammurabi as a son Semusiluna is 1749 to 1712 BC, fought valiantly to keep his father as a political creation together, but without a success. This is the first reason. And southern Mesopotamia, Sen Sumer, is a fell under control of the sea land density, and not before the historic center of Urus and Uruk, and has been to put off to be a touch. And the northern Mesopotamia fell under to control of Assyria. Hammurabi as a successors were henceforth confined to be all regions of Akkad, and they perceived there is a Babylonian kingdoms of their another century. This is the most important causing here. And the let's see to next a decline factor of Mesopotamia. Mesopotamia was known as the land between the two rivers, the Tigris to be a northern and Euphrates to be a south. The Tigris to be a north and Euphrates to be a south. Mesopotamia existed to the 3000 years before it is ended, and historians attribute many reasons for the fall of the Mesopotamia. The first of all here, a war. The main causing of decline of this civilization is the war and faulty irrigation system. The first factor is the most important, but come to two factors here, war and faulty irrigation system. That is the most important. Mesopotamia as a lifestyle was destroyed by the war. The different states were fighting for the control of each other. The land would be waged all out the conflict among each other to gain territory. You know that the Hammurabi, there is a die. This is not control here. The same Musis is Ulina, the son here. There are fight to the each other for different states and cities here. They mostly fought for form of land and would be waged to all
out a conflict among the each other to gain a territory. There's a fight here, the each other here gain a territory. Another important observation is that irrigation technique. Irrigation techniques are also one of the chief reasons for the decline of empire. The river were higher than their surrounding plan because of build-up slack in the river beds, so that water for irrigation flowing into the field by gravity. Once water was into there is a field, it could not be drained away easily because it is a field were lower than to the rivers. As the water evaporates, it is not only left it is a dissolved mineral salt behind, but also traces a salt aboard for the lower level of soil. By the 2300 BC, agriculture become of the Mesopotamians began to be shattered as the soil could not be longer support a plantation. There is not longer support the plantation. The same technique which made to the farming possible at some point of time. A prevent is during later period of time. There are declarations. The most important two factor here: a bad system of irrigations, and secondly here a war. The war for the king is a fight to the each other over the territory. This is the most important declaration system for the Mesopotamia here. हम जो आगे करने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन। इसके अंतर्गत हमारा जो अंतिम क्वेश्चन आया है जो कि कहते हैं सभी चीज़ हो जाने के बाद अंतिम जो बात आती है वो डिक्लेरेशन की ही होती है, यानी पतन की होती है। आखिर यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि मेसोपोटामिया इतनी विस्तृत थी, हड़प्पा का कल्चर से भी काफ़ी दुगनी जो है इसकी विकास थी, फिर भी इसका अंत किन कारणों से हो गया, क्यों डिक्लेरेशन हो गया? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है सभी इतिहास के बच्चों के लिए कि आखिर मेसोपोटामिया के कैसे जो है डिक्लेरेशन हो गई। कहते हैं दोस्तों इसमें बहुत से कारण थे, लेकिन इसको दो ही कारण को जो है महत्वपूर्ण दिया गया। मेसोपोटामिया के पतन के यहाँ क्या कारण है तो ये हम देखें तो हम्मुराबी की मृत्यु के बाद बड़े पैमानों पर विद्रोह हुआ, क्योंकि हम्मुराबी जो था काफ़ी पावरफुल था और काफ़ी कंट्रोल करने वाला जो था राजा था, और इसके समय काल में जो था मेसोपोटामिया फल फूल रही थी और काफ़ी तरक्की कर रही थी। लेकिन जब हम्मुराबी की मृत्यु हो गई तो वहाँ पर देखा जाए तो हम्मुराबी के बेटे शेमशू-इल्लुन्ना जो कि 1749 से लेकर 1712 तक ईसा पूर्व में अपने पिता की राजनीति रचना के एकजुट करने की बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। देखिए कोई भी अगर सभ्यता ख़त्म होती है तो कहीं ना कहीं जो है सत्ता की लालच होती है, और यहाँ पर भी सत्ता के लालच ने जो है मेसोपोटामिया के साम्राज्य को तहस नहस कर लिया, क्योंकि हर राजा एक दूसरे पर लड़ने लग गए थे और कोई ऐसा राजा नहीं था कि इन सभी के बीच में जो है कड़ी का काम करे। इसमें जो है हम्मुराबी के मृत्यु के बाद उसका बेटा ने बहुत कोशिश किया, लेकिन उससे जो है ये सफलता नहीं मिल सकी, और दक्षिण मेसोपोटामिया प्राचीन सुमेर समुद्री भूमि राजवंश के नियंत्रण में आ गया, और उर और रुक के ऐतिहासिक केंद्र को जलाने से पहले नहीं, और उत्तरी मेसोपोटामिया असीरिया के नियंत्रण में आ गया। हर क्षेत्र को जला दिया गया, हर चीज़ को नष्ट कर दिया गया, और कई क्षेत्र जो है किसी दूसरे क्षेत्र के नियंत्रण में चला गया। तो ये जो है पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है। हम्मुराबी के उत्तराधिकारी अब जो है अकड़ के पुराने क्षेत्र तक सीमित थे। हम्मुराबी के उत्तराधिकारी जो थे अब सीमित हो गए, अब वो अकड़ के पुराने क्षेत्र तक ही उनकी जो है सीमाधिकार रह गया, वो पूरे क्षेत्र के कंट्रोल से उनके बाहर चले गए। उन्होंने बेबीलोन साम्राज्य को एक और सदी तक सुरक्षित रखा, लेकिन उसके बाद वो सुरक्षित नहीं रख सके, वो जो है ख़त्म हो गया। फिर भी देखा जाए तो राजवंश तो सबसे बड़ा कारण था ही था, और एक और कारण था। चलिए देखें उन कौन से कारण हैं जो कि और भी महत्वपूर्ण यहाँ प्रकाश डालता है। मेसोपोटामिया के दो नदियाँ जो थी, उत्तर में टाइग्रिस और दक्षिण में यूफ्रेट्स के बीच की भूमि के रूप में जाना जाता था। जैसे हमने सभी क्वेश्चन में नदी की विशेषता के बारे में जाना, तो उसमें हमने देखा कि उत्तर में जो है टाइग्रिस और दक्षिण में यूफ्रेट के बीच की भूमि में जो है मेसोपोटामिया बसा हुआ था, और ये दो नदियाँ ही जहाँ समृद्धि के कारण थे
वहाँ पर पतन का सबसे बड़ा कारण ये नदी ही बनी। और इन नदियों के बीच में मेसोपोटामिया जो था ख़त्म हो गया। मेसोपोटामिया ख़त्म होने से 3000 साल पहले अस्तित्व में था। और इतिहासकार मेसोपोटामिया के पतन के कई कारण बताते हैं। एक तो राजा के जो है आपसी संघर्ष महत्वपूर्ण थी। इसमें युद्ध के अंतर्गत उन्होंने दो जो है कारण बताया, एक युद्ध बताया और एक दोषपूर्ण सिंचाई प्रणाली। ये दो कारण थे जिसके कारण मेसोपोटामिया का जो था साम्राज्य खत्म हो गया। कहते हैं युद्ध के कारण मेसोपोटामिया की जीवन शैली नष्ट हो गई। कहते हैं विभिन्न नगर राजा एक दूसरे की भूमि पर नियंत्रण के लिए लड़ रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया भी कि जो यहाँ पर हम मुराबिज थे वो काफ़ी सशक्त राजा था, लेकिन उसके बाद जो उसका बेटा बना इसलूना वो काफ़ी सशक्त तो था, लेकिन सभी राजाओं में कंट्रोल करने में वो सक्षम नहीं रह सका और उसका साम्राज्य से भी इक्कार क्षेत्रों में ही सीमित रह गया। देखा जाए तो ये संघर्ष बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं कि ये भूमि के लिए वो दो आपस में ही लड़ने लगे और वो हर संभव संघर्ष ही करते रहे। वो ज़्यादातर भूमि के लिए लड़ते थे और क्षेत्र हासिल करने के लिए एक दूसरे के बीच हर संभव और हर यत्न का जो है वो प्रयोग करते थे। तो जर्नल सी बात है दोस्तों, ये हमेशा देखने को मिला है जब कोई आपस में लड़ता है तो दूसरा बंदा जो है फ़ायदा उठा जाता है। ऐसे ही हमारा जब भारत 250 साल की गुलामी जब मिला तो इसका कारण भी यही था कि भारत के राजाएं आपस में लड़ रहे थे और अंग्रेज़ों की जो है कूटनीतियों को नहीं समझ पाए और जिसके कारण भारत जो है अंग्रेज़ों का गुलाम बना। और यही आज आधुनिक युग में भी हो रहा है। आज देखिए पार्टी लोग जो है आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं और इसका फ़ायदा तीसरा बंदा उठा रहा है। आज पार्टियों के लड़ने के कारण बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं भारत को जो है तरह तरह से जो है प्रताड़ना दे रहे हैं और ये बात शायद आम व्यक्ति नहीं समझ पा रहे हैं और न ही ये बात जो है पॉलिटिकल पार्टी समझ पा रही है, क्योंकि दोनों अवस्था में अगर कोई पीस रहा है तो उसमें आम गरीब व्यक्ति पीस रहा है। जब भी आम गरीब व्यक्ति पीसेगा, जब भी आम गरीब बंदों पर जो है दुख का पहाड़ टूटेगा तो जर्नल सी बात है राजनीतिक जो है तहस नहस हो जाएगी, क्योंकि हमारा देश डेमोक्रेसी है और यहाँ पर सभी जो है राजा बनते हैं, सभी मंत्री लोग बनते हैं तो आम जनता के कारण ही बनती हैं और जनता जब तक रोएगी तब तक जो है एक सैलाब आएगा और ये सच्चाई है। और इस सैलाब में सारे देखिएगा जितने भी पार्टी हैं वो तहस नहस हो जाएंगी, क्योंकि ये पार्टियों का जब तक मैं एनालाइज किया है मैंने जाना है कि इन पार्टियों का मकसद सिर्फ कुर्सी प्राप्त करना ही रहता है। आम गरीब बंदों को तरफ इनका नज़र थोड़ा भी नहीं जाता और जाता भी है तो बड़े बड़े साहूकार बड़े बड़े जो इंडस्ट्री के तरफ जाता है और इसके अंतर्गत रूल रेगुलेशन बनाते हैं और इसी के अंतर्गत जो आम गरीबों को जो है प्रताड़ना देती हैं। और यही मेसोपोटामिया में भी हुआ कि आम बंदों पर जो है सभी राजाओं ने जो है छोड़ दिया और आपस में ही लड़ने झगड़ने लग गए और इस कारण जो है मेसोपोटामिया जो है तहस नहस हो गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण बना वो था कृषि। देखिए कोई भी देश के लिए मेसोपोटामिया के जैसे हमने पढ़ा था कृषि के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था और इसके लिए जो दो नदियाँ सहायक थी वही दो नदियाँ जो है विनाशक भी सिद्ध हुई। कहते हैं जो रक्षक होता है वही भक्षक बन जाता है। तो मेसोपोटामिया में कुछ इसी प्रकार के दृश्य देखने को मिला। कहते हैं एक अन्य महत्वपूर्ण अवलोकन यह है कि सिंचाई तकनीक भी जो है साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण बना। नदी के तट में गाढ़ जमा होने के कारण नदी आसपास के मैदान से ऊंची थी। देखिए जो नदियाँ थी धीरे धीरे ऊंचा होता चला गया, क्योंकि उसमें जो गाढ़ आती थी, जो उपजाऊ मिट्टी आती थी, उसकी लेयर दिन प्रतिदिन जो थी बढ़ती चली जा रही थी और इसी कारण जो है नदी के तल गाढ़ के जमा होने के कारण नदी के आसपास के नदियों से मैदानों से ऊंची हो गई और इस सिंचाई के लिए पानी गुरुत्वाकर्षण द्वारा खेतों में बह जाते थे। अब जो नाला में बहना चाहिए था, जो नदियों में बहना चाहिए था, ऊंचाई के कारण क्या होता था कि सारे के सारे खेतों में पानी बह जाता था। एक बार जब पानी खेतों में चला जाता था तो वहाँ से आसानी से नहीं निकल पाता था, क्योंकि खेत नदी के नीचे होती थी।
अब जनरल सी बात है, नदी अगर ऊपर है और खेत नीचे है तो सारे के सारे पानी खेतों में जाएगा, और कई मास कई दिनों तक अगर रहेगा तो जनरल सी बात है फसल तो नष्ट होगा। जब फसल नष्ट होगा तो लोग वहाँ की कैसे जीविका अपना चला सकते हैं, कैसे अपना पेट भर सकते हैं? क्योंकि आपको तो पता है इंसानों के तीन ही चीज़ मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। और जब रोटी ना मिले तो जनरल सी बात है कोई भी उस क्षेत्र में रहना पसंद नहीं करता है। ठीक है, जैसे जैसे पानी वाष्पित होता गया, यह न केवल अपने घुले हुए खनिज लवणों को पीछे छोड़ता गया बल्कि मिट्टी के निचले स्तरों में लवणों की ऊपर की ओर खींचता गया। अब जनरल सी बात है, पानी बह के जो आई सूखी तो उसमें जो है सॉल्ट की मात्रा अधिक थी, और आपको पता होगा कि जहाँ पर सॉल्ट की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर कृषि करना संभव नहीं रह जाता है। तो ये सबसे बड़ा कारण बना मेसोपोटामिया के विनाश के लिए। और देखा जाए तो लवण की जो है खिंचता गया, और 2300 ईसा पूर्व तक मेसोपोटामिया कृषि अर्थव्यवस्था चरमराने लगी, क्योंकि मिट्टी अब वृक्षारोपण का समर्थन नहीं करता था, क्योंकि इसमें लवण मिली हुई थी, इसमें सॉल्ट मिला हुआ था। और मैंने बताया कि जहाँ सॉल्ट होता है, जिस खेत में सॉल्ट अगर आप डाल भी देते हो तो वो खेत जो है अनुपजाऊ हो जाता है। और यही बात मेसोपोटामिया में भी हुई कि जो खेती वो लोग इतने अच्छे से करते थे वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। अब जनरल सी बात है, जहाँ पर कृषि ख़त्म हो जाए वहाँ पर तो कोई भी बुद्धिजीवी रह नहीं सकता, और इस कारण मेसोपोटामिया का जो है डिक्लाइन हो गया। यानी जो तकनीकी विकास खेती के लिए संभव बनाती थी, बाद में वही खेती के लिए रोक दी। यानी रक्षक ही यहाँ पर भक्षक बन गया। जिस नदी की हम तारीफ़ करते थे, जिस नदी के बारे में हमने सभी क्वेश्चनों में जो है तारीफ़ के फूल बांटे थे, उन्हीं नदियों के कारण ही जो है मेसोपोटामिया के जो है सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। जैसे आपने पता भी होगा कि इंडो वैली सिविलाइजेशन का भी कुछ ऐसा ही हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी ही विनाश का कारण बनी। तो जनरल सी बात है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हर एक काल में रहता है, चाहे आधुनिक हो चाहे अब का काल हो। कहते हैं हमारा देश भी कृषि प्रधान देश कहलाता है, लेकिन लोगों की मूर्खता के कारण और लोगों की विदेश की नीति की भावना के कारण सारे जो है कृषि योग्य भूमि को बेचते चले जा रहे हैं, और ये सब अपने सपनों का महल विदेशों में जो है तैयार कर रहे हैं। भारत में ज़मीन बेच रहे हैं और वहाँ पर अर्बनाइजेशन करवा रहे हैं, और ख़ुद विदेश में मज़े ले रहे हैं, और वो अपने खेत जो है भारत में जो है बड़े बड़े ठेकेदारों को बेच देते हैं, और ये जो है छोटे छोटे टुकड़े करके आम गरीबों में बेच देते हैं। अब ये भी देखिए बहुत दुखदायक परिस्थिति आ जाती है, जब आम गरीब बंदा खरीदता है तो उसमें भी बहुत तकलीफ़ें होती है। सरकार के लाठी पड़ती है, सरकार कहती है कि जो खेत बेचा गया वो दूसरे सरकार की प्रॉब्लम थी, बहुत तरह की समस्याएं खड़ी करती है। और इस कंडीशनों से एक बात तो साफ हो जाता है कि कहते हैं जो व्यक्ति शासन कर रहा होता है उसका पतन स्वाभाविक है, क्योंकि इसमें देखिए न तो ठेकेदार का कुछ जाता है, न बेचने वालों को जाता है, जाता तो है सिर्फ आम गरीब व्यक्ति को, क्योंकि वो एक एक रुपया इकट्ठा करके जो है अपने लिए कुछ करने की कोशिश करता है, अपने सर पे छत रखने की कोशिश करता है, और सरकार आए दिन आके उसको गिराता है। तो जनरल सी बात है, ऐसी हालत हमने मेसोपोटामिया में भी देखी, इंडो वैली सिविलाइजेशन में भी देखी। तो मैं यही कहता हूँ कि जनता को लेके चलना सभी सरकारों का प्राथमिक दायित्व होनी चाहिए। अपना उल्लू कभी सीधा करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों हमारा लेखन कला और शहरी जीवन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो जाते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे सभी क्वेश्चन। त्रिपाण स्टडी सेंटर ने हर एक क्वेश्चन को महत्वपूर्ण बनाया है, और सभी क्वेश्चनों को जो है बखूबी एनालाइज किया है, समझा है, विचार किया है, फिर आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे एग्ज़ाम व्यू से, और आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी करना है। हम अगले चैप्टर में मिलेंगे, अगले क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे, तो आप बने रहे त्रिपाण सेंटर के साथ। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। अगर आप अगले वीडियो का नोटिफिकेशन देखना चाहते हो, अगले वीडियो देखना चाहते हो, अगले चैप्टर को देखना चाहते हो, तो जनरल सी बात है उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता ही है कि चैनल सब्सक्राइब रहेगा तभी आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सकेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, फिर से वही भावना रखिएगा, तो जनरल सी बात है अगला जो चैप्टर आने वाला है उसका वीडियो आपको शायद न मिल पाए। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, जो रेड सब्सक्राइब आपको समक्ष दिख रहा है उसको दबाइए और त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइए।